بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، میں ڈاکٹر عظمیٰ شفاعت۔ تو آج میں پھر ایک بار ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں، جس کا موضوع ہے ظفر ہیریٹک 7 آنسرز بائی کیسر احمد راجہ صاحب۔ تو امید کرتی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ ایکچولی ویڈیو تھوڑی لمبی تھی، تو میں نے ایک ہی سیشن میں اس کو کور کرنے کا سوچا ہے، کیونکہ کافی لمبا ہو جاتا ہے، تو اس لیے میں نے سوچا کہ شارٹ ہی آج ریاکشن دیتی ہوں۔ اور میں نے کافی ٹائم سے ظفر ہیریٹک کا نام سنا تھا، بہت سارے کمنٹس بھی آ رہے تھے، ظفر ہیریٹک زندہ باد، ظفر ہیریٹک۔ تو آج میں نے سوچا کہ دیکھتی ہوں کیا ہے ظفر ہیریٹک، کیا چیز ہے، مطلب کیا ہے، ایکس مسلم ہے کیا ہے نہیں ہے۔ تو آج میں نے سوچا کہ ان پہ ویڈیو بناتی ہوں، تو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے گی، لاسٹ تک ویڈیو میں بنے رہیں۔ تو پھر چلے چلتے ہیں، دین کی باتیں ساتھ میں سیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں کیسر احمد راجہ۔ مسلمز کو السلام علیکم، نان مسلمز کو گریٹنگز۔ ظفر ہیریٹک صاحب ہیں، انہوں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا ہے جس میں انہوں نے 7 سوالوں کے جواب دیے ہیں۔ ایکچولی انہوں نے اسلام پہ اعتراض کیا ہے، لیکن وہ سوالوں کی صورت میں اعتراضات کیے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان کے ان سوالوں میں کوئی فلسافیکل میرٹ ہے یا نہیں ہے جو انہوں نے جواب دیے ہیں۔ اس کا جواب دینا بھی ضروری ہے، انالائز کرنا بھی ضروری ہے۔ تو مزید آپ کا وقت لیے بغیر لیٹس سی کہ ان کے پاس کیا ہے کہنے کو۔ آج میں کوشش کرتا ہوں آپ کی کچھ سوالوں کے جواب دینے کی، جو اکثر میرے من میں بھی ہوتے تھے جب میں آپ کی طرح ایک پکا ایمان رکھنے والا مسلمان تھا۔ اب یہ یاد رکھیے گا کہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ ایمان رکھنے والے مسلمان تھے، وچ از ٹو سے کہ یہ ایکس مسلم ہیں، لیکن ویڈیو میں شاید ان کی کچھ باتیں سن کے آپ کو حیرت ہو کہ شاید آپ ان کے اس دعوے کے بارے میں شک نہ پڑ جائیں۔ اور جب کسی کو اسلام کے خلاف بولتے دیکھتا تھا تو سوچتا تھا کہ کیا ضرورت ہے کسی مذہب کے خلاف بولنے کی، سب کو اپنا اپنا مذہب فالو کرنے دو، کیوں نفرت پھیلا رہے ہو کسی مذہب کی کمیاں دکھا کر؟ کمیاں تو سبھی ریلیجنس میں ہیں۔ اکثر یہ سوال میں بھی پوچھتا تھا اور آج اس کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ انسان کی اچھائی کوئی مذہب طے نہیں کرتا۔ آپ جو اپنی پرورش میں پاتے ہو وہی آپ کا نیچر ہوتا ہے، وہیں سے آپ کو اچھائیاں یا برائیاں ملتی ہیں۔ Trendy lips under 699. Wait! रमती आवे माड़ी रमती आवे मेलडी माड़ी आज रमती आवे ये रमती आवे माड़ी रमती आवे कानका माड़ी आज रमती आवे ये रमती आवे माड़ी रमती आवे रंगबाई माड़ी आज रमती आवे ये रमती आवे माड़ी रमती आवे चोटिया वाली आज रमती आवे। Here is the thing، یعنی اسلام سے آپ نفرت کریں وہ آپ کا حق ہے، لیکن اس نفرت کی وجہ سے آپ نیچر اور نرچر کی ہزاروں سال کی ڈبیٹ کو اپنی ڈبیٹ کی ایک سائڈ پہ رکھ دیں، یہ کوئی عقل کی بات نہیں ہے۔ والدین کی طرف سے ہمیں نیچر نہیں ملتی، اس کو نرچر کہا جاتا ہے۔ وائی ڈو یو تھنک کہ ایک ماں ایک باپ اگر ان کے 3 بچے ہیں تو تینوں کی ویلیوز آپس میں نہیں ہوتی، نیچر آپس میں نہیں ہوتی، طبیعتیں آپس میں نہیں ہوتی، اس لیے کہ نیچر کہیں اور سے آتی ہے۔ جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ نرچر ہے، اور پھر آپ خود بھی تو اس کا ایک ثبوت ہیں۔ اگر آپ واقعی ایک مسلم ہیں تو آپ کے والدین نے تو آپ کی تربیت اسلام کی اصولوں کے مطابق کی ہوگی، وہ آپ کی نیچر کیوں نہیں ہے؟ لیٹس موو آن۔ اور یہ انسانی نہیں، جانوروں میں بھی ملتی ہیں۔ اگر اچھائی کا رشتہ مذہب سے ہوتا تو ہمیں جانوروں میں اچھائی نہ دکھتی، کیونکہ وہ کسی بھی مذہب کو نہیں مانتے۔ اگین کوئی آدمی یہ نہیں کہتا کہ آپ کو مذہب سے ہمیشہ اچھائی ملے گی اور کہیں سے آپ کو برائی ملے گی۔ The thing is، امپورٹنٹ کوشچن یہ ہے کہ ہم ایکٹس کے اوپر اچھائی یا برائی کرنے کو کیوں لگاتے ہیں؟ ایک کام ہم اچھا کہتے ہیں، کوئی برا کہتے ہیں، کیوں؟ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک مورل کمپس پایا جاتا ہے جو ہمیں سینس دیتا ہے، فرق کرنے کو ہمیں اجازت دیتا ہے کہ اچھا کیا ہوتا ہے اور برا کیا ہوتا ہے۔
इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि वो मॉरल कंपस हमारी बायोलॉजी में नहीं है, और अगर हमारी बायोलॉजी में भी नहीं है और फिर भी हमारे अंदर है, तो इसका मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं से तो ज़रूर आता है। हम इसकी वजह से एक क्रिएटर की तरफ जब ये चीज़ पॉइंट आउट होती है तो उस क्रिएटर को मानते हैं, फिर उस क्रिएटर का जो बताया हुआ रास्ता है उसको दीन कहा जाता है, उसको मज़हब कहा जाता है। हम इसलिए मज़हब में नहीं चले जाते कि उसमें हमें अच्छी चीज़ और बुरी चीज़ वहाँ पे जाकर पता चलती है, बल्कि अच्छी और बुरी चीज़ का जब हमें पता चलता है कि हमारे अंदर एक सेंस है और फिर वो हमें क्रिएटर की तरफ पॉइंट आउट करता है, जब हम उस क्रिएटर का ईमान लेके आते हैं तो उसके बताए हुए रास्ते पे अमल करते हैं, दीन ये एनीवे लेट्स मूव ऑन। वैसे इस तरह की बातें सुनने के बाद मुझे लग नहीं रहा कि आगे चल के इतनी ज़्यादा इतनी बातें मिलेंगी, बट व्हाटएवर लेट्स मूव। और फिर इसकी दूसरी सबसे बड़ी दलील यह है कि क्या दुनिया में सारे गुनाह करने वाले किसी मजहब के नहीं होते? बेशक होते हैं, और बल्कि इसके उलट गुनाहगारों में मुल्हिद कम ही होंगे, क्योंकि मुल्हिद जानता है कि एक ही ज़िंदगी आपको मिलती है और गुनाह का कफ़ारा अदा नहीं किया जा सकता। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि मुल्हिद जो होते हैं वो गुनहगार नहीं होते, लेकिन उसकी वजह ये नहीं है कि एथियस्ट बड़े आला अखलाकी किसी लेवल पे अपने आप को देखते हैं या हम उनको देखते हैं, और उसकी वजह यह है कि गुनाह और सवाब का जो कॉन्सेप्ट है ये खालिस्तान मसली है। जब कोई मज़हब में कोई चीज़ जो रोकी गई है, जो हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला का रास्ता है, खालिद का रास्ता है, जब हम उससे हटते हैं तो हम उससे गुनाह करते हैं। जब वो तसव्वुर ही आप पे अप्लाई नहीं करता तो फिर वो गुनाह कैसे हो गया? मिसाल के तौर पे मज़हब के लोगों में इंसेस्ट को हराम समझा जाता है, गुनाह समझा जाता है, लेकिन किसी एथियस्ट के लिए इंसेस्ट गुनाह नहीं है। आई मीन इन अदर वर्ड्स आप ये कहें कि कोई भी इंडियन अमेरिका के टैक्स लॉज को वायलेट नहीं करता या बिकॉज उस पर अप्लाई नहीं करते। आई वाज रियली होपिंग कि कुछ इंटेलेक्चुअल फिलोसॉफिकल एतराज़ात आएंगे ज़बरदस्त की तरफ से, लेकिन अब मैं क्या कह सकता हूँ सिवाय इसके चले आगे बढ़ते हैं। मैं नहीं कहता कि दुनिया के सारे मुस्लिम भाई 3 तलाक जैसी इस्लामिक बुराई को करते हैं, लेकिन जितने भी करते हैं वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इस्लाम इसकी इजाज़त देता है और दावा करता है कि ये खुदा का हुक्म है। नाइंसाफ़ी को खुदा का हुक्म बताकर जायज़ ठहराना गलत है। दुनिया में जितनी भी बहनें इसे झेलती हैं उनकी तकलीफ़ को याद करो। क्या आप चाहोगे कि आपकी बहन या बेटी को उसका हस्बैंड 3 तलाक देकर हलाला करवाए? मेरे चैनल पर हमेशा राइट वेल ये बात बिल्कुल आपको ठीक है कि कोई नहीं चाहता कि कोई तलाक हो या कुछ इस तरह की बात हो, तो दैट इज़ वाई हम तलाक को नापसंदीदा चीज़ कहते हैं। इस्लाम तलाक को नापसंदीदा चीज़ कहता है, वो उसने कोई अय्याशी का ठिकाना नहीं बनाया हुआ उसको कि तलाक दे दो हलाला कर दो। आई मीन पहले मैं तलाक की बात करता हूँ, फिर हलाले पे आते हैं। तलाक एक फ्रीडम ऑफ चॉइस है कि अगर आपकी शादी हुई, आपका विवाह नहीं हो रहा, तो जबरन एक दूसरे के साथ ना रखो करके अपने रास्ते की बात करो। आई डोंट थिंक इसमें जितनी बुरी बात है, लेकिन मुझे दीन को ये चीज़ इसलिए समझ नहीं आ सकती कि वहाँ पे निकाह का तस्वर है, वहाँ पे वन नाइट स्टैंड का तस्वर है, वहाँ पे हरामकारी का तस्वर है। तो चूँकि वहाँ पे ये तस्वुरात पाए ही नहीं जाते, इसलिए उनको समझना बड़ा मुश्किल है कि शादी और निकाह और तलाक इनकी टेक्निकल डिटेल्स क्या है उसे आती है। रही बात हलाले की, तो ज़फ़र साहब वाकई ही अगर आप एक्स मुस्लिम हैं तो आपको ये बुनियादी बात पता होनी चाहिए कि ये जो हलाला जिसे आप कह रहे हैं इसकी कोई शरीक हैसियत नहीं है। तलाक कब होती है? 2 प्रोडोमिनेंट इंटरप्रिटेशंस हैं, डिपेंडिंग आप किस यूनिवर्सिटी में उसको फॉलो करते हैं कि एक वक्त में 3 तलाक हो जाती है या एक वक्त में एक होती है, बट 1 भी होती है जब तलाक फाइनलाइज हो जाती है और उसके बाद हस्बैंड एंड वाइफ और दुनिया में आगे चले जाते हैं, जो कि उस वक्त हस्बैंड एंड वाइफ नहीं रहते। जो वाइफ है अगर वो किसी और शादी कर लेती है और नई फैमिली आबाद करने की नीयत से वो नई जगह पे शादी करती है और फिर किसी वजह से अगर वहाँ पे भी निबाह नहीं है और उसके बाद हस्बैंड एंड वाइफ जो पहला वाला सोच था, अगर वो दोनों आपस में ये म्यूचुअल एग्रीमेंट से फैसला करते हैं कि हम दोबारा से दूसरे किसी के साथ शादी कर लें, तो इसको फ्रीडम ऑफ चॉइस कहा जाता है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए अगर आप वाकई ही एक्स मुस्लिम हैं। वो दूसरी जगह पे शादी तलाक की नीयत से नहीं करेगा, या उसका जो पहले वाला हस्बैंड है वो कहीं और नहीं भेजेगा उसको कि जो आगे जो हमारा निकाह करने के, ये हराम है इस्लाम में। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप वेजिटेरियनिज्म को गलत साबित करें सिर्फ इस केस पे कि आपने कुछ वेजिटेरियंस को गोश्त खाते हुए नहीं किया। ये बात सबसे पहले कही जाती है कि मुसलमान बुरे नहीं हैं। इस्लाम एक मज़हब है जिसमें बहुत सारी बुराइयां हैं, लेकिन उसकी वजह से ये कहना कि मुसलमान बुरे हैं ये गलत है। ये आपके वीडियो का छोटा सा हिस्सा मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपके नज़दीक मुसलमान सारे बुरे नहीं हैं लेकिन इस्लाम गलत है, वेयरएज़ हलाले पे आप कुछ मुसलमानों की गलत प्रैक्टिस को पूरे इस्लाम पे अप्लाई कर रहे हैं। तो बेसिकली आप क्या खुद अपने खिलाफ आर्गूमेंट लेके आए हुए हैं?
کہ کچھ مسلمان ہیں جو یہ حلالہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ کرتے ہیں اور وہ اسلام کے خلاف جا رہے ہیں، وہ اسلام میں مجرم ہیں، اور آپ ان کی بیس پہ سارے اسلام کو غلط کہہ رہے ہیں. whereas آپ کا اپنا دعویٰ یہ ہے کہ نہیں، مسلمان تو ٹھیک ہو سکتے ہیں، اسلام غلط ہے، جبکہ اسلام ایک پریکٹس کو حرام کہہ رہا ہے، اور اگر کچھ مسلمان کر رہے ہیں تو آپ اس کی وجہ سے اسلام کو مرے گا. کچھ کنسسٹنسی ہونی چاہیے آپ کے آرگومنٹس میں. اینی اسلام غلام عورتیں بنا کر ان کا ریپ کرنے کو جائز ٹھہراتا ہے. ایبسلیوٹلی ربش. 6.5 گھنٹے کی ہماری اسٹریم اس پہ ہو چکی ہے، جس میں ہم نے ایک ایک کر کے جتنی بھی جھوٹی روایات ہیں، غلط باتیں ہیں، ساری کی ساری ہمیں بتا دی ہیں کہ اسلام میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اسلام نے غلامی کو ختم کیا ہے. صرف اسیران جنگ وہ بھی اسلام نے شروع میں ختم کیے. غزوہ بدر سے پہلے سورہ محمد کی آیت نمبر 4 صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں اسلام نے اعلان کر دیا کہ جو اسیران قید جنگ ہوں گے، جو POWs ہیں، ان کو ریلیز کیا جائے گا آئدر کمپنسیشن دے کے یا فری میں، احسان کر کے. کسی نے اس پہ ایگریمنٹ نہیں کیا، کہیں سے کوئی پیغام نہیں آیا کہ ٹھیک ہے ہم بھی ایسا ہی کریں گے. تو اسلام نے اس کا کوئی الٹرنیٹیو دیا. آج دنیا میں اگر جنیوا کنونشن کے مطابق ہم وہی کر رہے ہیں جو قرآن میں ہے، جس سے کہ آپ کا اگر سویلائز دنیا جو ہے جسے آپ کہتے ہیں، یہ اگر 1350 سال لیٹ ہے تو ہم اسے برا تو نہیں کہیں گے، ویلکم کہیں گے، لیکن اس کی بیس پہ ہمیں غلط نہ کہیں، اس لیے کہ ہمارا اوریجنل سٹانس ہے. ناؤ اگر کسی وجہ سے، جیسے میں نے آگے عرض کیا کہ وہاں پہ جب لوگوں نے یہ بات نہیں مانی تو اسلام نے جو الٹرنیٹیو سسٹم دیا ہے اس میں لومڑی کے ساتھ ریپ کی کوئی اجازت نہیں ہے. اسلام میں سیکس لیوڑی کا کوئی تصور نہیں ہے. قرآن ان سے شادیوں کی تلقین کرتا ہے. ان کو آزاد کر کے ان کی آزادی کو ان کا حق مہر بنا دو، یا ان کو آزاد کر کے سیپریٹ ان کو حق مہر دے دو. یہاں تک کہ غلامی کو امپلائمنٹ رائٹس میں کنورٹ کر دیا کہ جیسے آج دنیا ڈیولپ دنیا میں کوئی آدمی بھی، کوئی امپلائی بھی اپنی کنڈیشنز کو پورا کر کے کہیں اور جا سکتا ہے. اسلام نے 1400 سال پہلے یہ سسٹم دیا. سورہ نور میں یہ آیت موجود ہے، کنڈیشنز پورا کر کے کہیں اور جانا ہے تو جاؤ. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب یہ آپ غلامی کی بات کرتے ہیں، آپ کے ذہن میں وہ ٹرانسٹلانٹک غلامی آتی ہے جو امریکہ میں ہے. اسلام میں یہ کوئی تصور نہیں ہے، جس پہ ہم تفصیلی بات کر سکتے ہیں، آئندہ بھی کریں گے. ابھی ہم نے ایک اور اسٹریم کی ہے، وہ ایکسپلین. لیکن اس طرح سے یہ ایموشنل باتیں نہیں چلیں گی. ہم نے 6.5 گھنٹے میں سارا کچھ کلیئر کیا ہے. اب ان آیات، ان حوالوں کو جن کو ہم نے ریپیٹ کیا اور آپ کی غلط تشریحات آیات کی جن کو ہم نے ریپیٹ کیا ہے، اب اس کا جواب دینا آپ کا کام ہے. جذباتیت سے کام اس لیے نہیں چلے گا کہ آپ خود کو ریشنلسٹ اور مذہب والوں کو ایموشنل کہتے ہیں. اٹ از ٹائم دیٹ یو بیکم ریشنلسٹ ناؤ اینڈ رسپونڈ. ایک اور سوال تھا جو اکثر لوگ مجھ سے کرتے ہیں، اور ایک وقت میں بھی یہی سوچتا تھا. ریلیجنس کے رولز لوگوں کو باندھے رکھتے ہیں اچھا کام کرنے کے لیے. ظفر، تم غلط کر رہے ہو انہیں دین سے بھٹکا کر. جی نہیں، میں نہیں مانتا یہ بات. اگر آپ اسلام کی جنت کے حوروں کے لالچ یا دوزخ کی آگ کے ڈر سے اچھے ہو تو آپ سچ مچ اچھے انسان نہیں ہو. کیونکہ اچھا انسان تو وہ ہوتا ہے جو بنا کسی ڈر یا لالچ کے اچھا ہو، جو بنا کسی ریوارڈ یا پنشمنٹ کے انسانیت کو مانے. ریوارڈ یا پنشمنٹ کے انسانیت کو مانے. Well, again, the problem is that we don't understand the basics. ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ جو ایمان کی اعلیٰ ترین قسم ہے وہ یہی ہے کہ جب انسان جنت کے لالچ میں نہیں، یا اس کی ایکسپیکٹیشن میں نہیں، یا دوزخ کے ڈر سے اللہ تعالیٰ کو نہ مانے، بلکہ خالق کو اس لیے اس کا سجدہ کرے، اور خالق کو کہ وہ اس لائق ہے کہ صرف اسی کو سجدہ کیا جائے. لیکن اس کے باوجود کوئی انسان جنت کی ایکسپیکٹیشن میں یا اس کے ریوارڈ کے لیے کرتا ہے، یا دوزخ سے ڈر کے کرتا ہے، تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے، کیونکہ یہ انسان کی نیچر میں ہے. دنیا کے ہر سسٹم میں ایسا نہیں ہوتا ہے. ایون آپ دین سے جب میری بات ہوتی ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بل آپ لوگوں کو اگر کوئی ریوارڈ کا پرابلم نہیں ہے اور کوئی ڈر نہیں ہے مسلم کو، تو پھر آپ جو مرضی کریں، کیا پرابلم ہے؟ کہیں ریپ، قتل، مرڈر، ڈو اینی تھنگ، ڈر تو نہیں ہے کسی چیز کا. تو آگے سے یہ جواب آتا ہے کہ نہیں، اس طرح معاشرے میں سب نے کرنا شروع کر دیا تو معاشرہ خراب ہو جائے گا. ان ادر ورڈز، آپ برے کام سے اس لیے خود کو روکتے ہیں کہ اس سے پھر ایک اچھا معاشرہ ہم تشکیل دیتے ہیں. اور اچھا معاشرہ، اس کا ریوارڈ یہ ہے کہ ہم اور ہماری فیملی سیفٹی کے ساتھ رہتے ہیں. اور اگر اچھا معاشرہ نہ ہو تو پھر ڈر یہ ہے کہ ہم اور ہماری فیملیز سیفٹی کے ساتھ نہیں رہ سکتے. وچ مینس کہ ریوارڈ اینڈ فیئر ہر انسانی سسٹم کا حصہ ہے. آئی ہیو جسٹ نو آئیڈیا کہ آپ کے پاس ہو کیا. یہاں مذہب اگر ہمیں غلط کی پہچان سکھاتا ہے تو وہی مذہب گناہ کرنے کے بعد اس گناہ سے پاک ہونے کا راستہ بھی دیتا ہے. جیسے قتل کر کے کفارے کے طور پر ایک غلام آزاد کر دو. یعنی اتنی صفائی سے غلط بیانی کر دیں، سنو کوئی ایشو نہیں. جبکہ قرآن میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی انسان سے ایکسیڈنٹلی کسی انسان کی جان چلی جاتی ہے، جیسے ایکسیڈنٹ
तो उसका तरीका कार ये है कि गुलाम को आज़ाद करो और उसकी फैमिली को दैयत दो। और आपने बड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, जान ले लो, नाम आज़ाद करो, बात यू नो। आप कहते हैं कि मैं लोगों को अच्छा रास्ता दिखाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, लेकिन यू हैव टू आस्क योरसेल्फ। और मुझे उम्मीद है कि आपको इस चीज़ के बारे में नहीं पता, वो एक चैलेंज जान बच सकती है। लेकिन अगर आपको पता भी है उसके बावजूद ऐसी चीज़ों को बता रहे हैं सही तरह से, तो फिर आप लोगों को कौन सा अच्छा रास्ता दिखाएंगे? आगे बढ़ते हैं। रमज़ान में खुदा को दिल में बसाकर रोज़े रख लो तो पिछले सब गुनाह माफ़। कसम खाकर उससे बेहतर कुछ लगे तो कसम तोड़ दो, कफ़ारा अदा कर दो। अरे क्यों भाई, ऐसे कैसे आपके बड़े बड़े गुनाह माफ़ हो जाएंगे? Well, here is the problem. गुनाह किसने माफ़ करना है? आपने करने हैं, मैंने करने हैं। मैं और आप इस कॉन्ट्रैक्ट में जो बंदे और खालिक और मखलूक का जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें हम थर्ड पार्टी हैं या नहीं? आंसर इज नहीं, हम नहीं हैं। अगर हम नहीं हैं तो हम सवाल कैसे उठा सकते हैं? जिसके कानून को तोड़ा गया है माफ़ उसने करना है। लेकिन यहाँ पे जो आपने एक बड़ी क्लेवर हरकत की है उसको एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह ताला वो गुनाह माफ़ करता है जिसका ताल्लुक सिर्फ इंसान और रब के साथ है। हकूक़ुल इबाद इसमें नहीं है। जब आप किसी इंसान के ख़िलाफ़ फिर उसका नुकसान करेंगे, उसका हक मारेंगे, तो फिर आप रोज़ा रखें या कुछ भी करें, उसका कोई पता नहीं होने वाला। वो आपने लोकल लेवल पे इंसान का इंसान के साथ जो मामला है वही आपने हल करना है। इंसान माफ़ करेगा तो अल्लाह माफ़ करेगा। सीरियसली, आप रिस्पेक्ट इंसान को बात। गलती के बाद इंसान के अंदर एक गिल्ट होता है, वो गिल्ट तो खुदा ने माफ़ करके छीन ही लिया। अब इंसान फिर गलती पर गलती करेगा और फिर से माफ़ी मिल जाएगी। तो क्या ज़रूरत है हमें ऐसे कायदे कानूनों की जो हमें फिर से गलती करने का मौका देते हैं? दूसरी तरफ अगर आप इंसानियत को देखें तो ये आपको दूसरा गुनाह करने का मौका नहीं देती। अनबिलीवेबल। जो इनकार्सरेशन 3 उसकी बात होती है, फिलॉसफी ऑफ क्रिमिनल पनिशमेंट अगर आप उसको देखें, एक उसमें होती है वजह पनिशमेंट, एक रिफ्लेक्शन और एक डिटरेंस। पनिशमेंट के जो इंसान ने गलत किया है उसकी सलाह में, रिफ्लेक्शन ये कि जो उसने किया है और फिक्र करे उस पर कि उसने क्यों ऐसा किया। और तीसरा है डिटरेंस के लोगों को तक भी खबर पहुँच जाए कि अगर आप लोगों ने ऐसा किया तो सलाह आपको भी मिलेगी। यही वजह है कि डेवलप दुनिया में जो प्रिजन्स होती हैं उनको रिहेबिलिटेशन सेंटर्स कहा जाता है या रिहैब्स प्रिजन्स के अंदर इंस्टॉल किए जाते हैं। और वो इसलिए किए जाते हैं कि उन्हें पता है कि यहाँ से हम इंसान को कुछ बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, इसलिए कि इसने दोबारा से गुनाह करना है, इसने दोबारा से जुर्म करना है, क्योंकि इंसान दोबारा से जुर्म किया करता है। ये जो आपने कहा कि इंसानियत दोबारा उसको मौका नहीं देती है, कैसे, क्या करती है इंसान? कत्ल कर देती है बंदे को। क्योंकि ये तो नहीं हो सकता कि एक इंसान एक दफ़ा ये गलती की तो दोबारा गलती ना करे। कोई हमें कोई ऐसा यूरोपियन कंट्री की दुनिया में दिखा सकते हैं कि जहाँ पे लोग सिर्फ एक दफ़ा ही गलती किया करते हैं? इनफैक्ट आप मुझे कोई एथियस्ट दिखा सकते हैं जिसने ज़िंदगी में सिर्फ एक बार ही गलती की और दोबारा गलती नहीं की? अगेन इस्लाम से ज़रूर नफरत करें, लेकिन आर्ग्यूमेंट्स में कुछ रैशनैलिटी होनी चाहिए। ये हवाई बातें जो सुनने में शायद किसी को अच्छी लगे लेकिन बेसलेस, अनफाउंडेड, इससे इस्लाम का कोई नुकसान नहीं होगा। इसको नुकसान करना है तो सीरियस अकली और फिलोसॉफिकल बेसिस पे करें। लेट्स मूव ऑन, शैल वी। तीसरा सवाल, अगर आपकी बात मान भी लें तो कैसे पता लगाओगे कि कौन सा काम इंसानियत का है? मजहबी तो बताता है कि क्या गलत है क्या बुरा। ये सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है कि अच्छाई इंसान में मजहब से आती है। अच्छाई का सबसे बड़ा रूल यह है कि दुनिया के साथ उस तरह से पेश आइए जिस तरह से आप चाहते हो कि दुनिया आपसे पेश आए। मसलन आप नहीं चाहेंगे कि कोई आपको धोखा दे या आपसे बदतमीज़ी से पेश आए, तो फिर आप भी किसी को धोखा नहीं दें, ना बदतमीज़ी से पेश आएँ। आप नहीं चाहोगे कि कोई आपका या आपके अपने का कत्ल करे, तो आप भी ना करें। आप चाहते हो दुनिया आपसे ईमानदारी और खुशी खुशी पेश आए, तो आप भी वही करो। वेल, प्रॉब्लम इस सारी बात में ये है कि अगर हम मुल्हिदीन की हिस्ट्री को देखें तो वहाँ पे पिक्चर हमें जैसे लगती नहीं। कम से कम 4 करोड़ और ज़्यादा से ज़्यादा 25.9 करोड़, ये मुफ्त एस्टिमेट्स हैं विद द मीन ऑफ 11 करोड़। इतने लोगों का कत्ल मुल्हिदीन ने किया है, किसी और फिक्री तबके ने इतना ज़्यादा कत्ल नहीं किया इंसानों का जितना मुल्हिदीन ने किया हुआ है। तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको चीज़ें बेचते हुए अच्छा लगता है। रही बात ये कि हम दीन को क्यों फॉलो करते हैं, उसमें भाई क्यों ढूंढते हैं, वो मैं आपको जवाब दे चुका हूँ कि मॉरल कंपस क्रिएटर की तरफ पॉइंट आउट होता है, उसके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, दीन इसे है। लेकिन आप लोगों का कत्ल खून, इसकी जस्टिफिकेशन इस्लाम की क्रिटिसिज्म में नहीं। और जबकि इस्लाम मज़हब को फॉलो करते हैं तो बिना वजह के मसले आपको मिलते हैं। किस दिन बाल कटवाएं, किस दिन नहाएं, किस दिन घूमने जाएं, टॉयलेट जाने की दुआ, बीवी से हम बिस्तरी की दुआ। क्या मतलब इन चीज़ों का? जो काम आपको जब करना ठीक लगे तब करो।
तब करो जब ठीक लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए, अगर आपने एंथ्रोपोलॉजी पढ़ी हुई है, विच आई डोंट थिंक कि आपने पढ़ी हुई है, या अगर आपको फिलॉसफी ऑफ कल्चर की समझ है, कि जब भी आप कल्चर डेवलप करते हैं तो उसके साथ साथ आप रिचुअल्स को डेवलप करते हैं। दैट इज़ हाउ ह्यूमन मॉरल सिस्टम वर्क्स। हमने अगर अपनी रिचुअल्स अपने दीन से ली हुई हैं तो उसके खिलाफ कोई रैशनल आर्गूमेंट नहीं है, इसलिए कि अगर आप दीन से अपनी रिचुअल्स को डेवलप न करें तो आपको फिर भी सेकुलर रिचुअल्स डेवलप करनी होंगी, क्योंकि माशरे ऐसे ही खुद को होल्ड करते हैं। आस्क योरसेल्फ, आपके पास खाना भी है, आपके पास घर में टॉयलेट भी मौजूद है, आप अपना खाना अगर टॉयलेट में ले जाएँ तो दुनिया को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, टॉयलेट को भी एतराज़ नहीं होगा, आपकी रोटी को भी एतराज़ नहीं होगा। बट व्हाई इज़ इट कि आप उसे मायूब समझते हैं? एंड आई होप कि आप उसे मायूब समझते हैं, बिकॉज यू हैव टू डेवलप अ साइकोलॉजिकल कॉन्स्ट्रक्ट। ये चीज़ ठीक है या नहीं है? अगर हम दीन से लेते हैं तो फिर इसमें गलती क्या है? और आपके नज़दीक जो चाहे जब ऐसा करो, तुम मुझे दुनिया का कोई ऐसा सिस्टम बता दे जिसमें ऐसा अलाउड है। इवन वो ममालिक जहाँ पे ऐसी चीज़ें अलाउड हैं जिनको इस्लाम अलाउड नहीं करता, वहाँ पे भी पाबंदी है। आस्क योरसेल्फ कि दुनिया के जितने वो खुश मुल्क जिनका मैं आगे जिक्र करूँगा, जो आपने बताया है कि वहाँ पे शराब पीने की तो इजाज़त है, लेकिन आपकी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोकेन की इजाज़त नहीं है, वेराज़ की होनी चाहिए, इसलिए कि आपकी फ़िलॉसफी के मुताबिक जो जी चाहे जब जी चाहे करो, क्या प्रॉब्लम है उसमें? ये मसले वक्त की बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। मैं agree चौथा करता हूँ सवाल, जो आपने बताया वक्त बड़ी इंसानियत की बातें करते हो, इस्लाम ही इंसानियत का मजहब है, अगर इसे सब कबूल कर लें तो दुनिया बेहतरीन हो जाएगी। ऐसा नहीं है। ये वो ख्याली सोच है जो हमारे दिमाग में इसलिए पैदा होती है क्योंकि हमें बचपन से इस्लाम की मोहब्बत होती है, इसे हम छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए चाहते हैं कि दुनिया इसे अपना ले। लेकिन क्या हमने कभी ये जानने की कोशिश की कि जितनी दुनिया ने इसे अपनाया है वो कितनी खुश है इसे अपनाकर? दुनिया में 30 मुल्क ऐसे हैं जहां पूरी तरह से इस्लाम नाफिज है। That's wrong. Flat out wrong. दुनिया में एक भी मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ पे शरीयत मुकम्मल तौर पर नाफिज है। इनफैक्ट जो लिस्ट आप दिखा रहे हैं, जिससे लोग ये समझ के मान लेंगे कि बल आपने झंडों के पिक्चर्स और मुल्कों के नाम दिखा दिए तो ये सच ही होगा, उसके ऊपर भी लिखा हुआ है कि कंट्रीज़ विद मोस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन, नहीं लिखा हुआ कि कंट्रीज़ विद कंप्लीट शरिया सिस्टम। कुछ मुल्क हैं जो शरीयत के ज़्यादा नज़दीक हैं, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान है, लेकिन पाकिस्तान की मईशत तो माशाल्लाह बहुत ही शानदार एक्सप्लेनेशन दिया कैसर अहमद राजा साहब ने। बहुत ही मज़ा आया देखकर वीडियो को कि ज़फ़र हेरेटिक को भी मैंने देखा, मतलब क्या ही इलॉजिकल सवाल हैं उनके, और वो अपने आप को मुस्लिम कहते थे, मतलब ईमान वाले मुस्लिम कहते थे। आपने अगर सही से वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा कि क्या ईमान वो रखते थे, अगर वो कभी मुस्लिम भी थे तो क्या ईमान उन्होंने रखा, और कितने इलॉजिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं वो। और माशाल्लाह बहुत अच्छे से कैसर अहमद राजा साहब ने रिस्पॉन्ड किया। तो आज वीडियो फुल नहीं है, हाफ़ी वीडियो, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट सेशन भी शेयर करूँगी जल्दी आप लोगों के साथ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़्यादा से सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और हाँ कमेंट में ज़रूर बताएं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। तो फिर जल्द ही मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।